Hi students, today we have to discuss the application of Gauss theorem. Electric field intensity due to uniformly charged thin spherical cell or a conducting sphere. Let us consider a spherical cell. This is a conducting spherical cell. That's why charge is distributed over the surface. The center of the sphere is O and radius is R. We have to calculate the electric field intensity at the following point. First point is at an external point. External point पे देख लीजिए, clear? For calculating the electric field intensity at an external point, let us consider a spherical Gaussian surface. एक spherical Gaussian surface बना लीजिए. Its radius is small r. At r distance there is a point P where we have to calculate the electric field intensity. Let us draw a small area element around point P. The direction of area vector and electric field intensity is radially outward. Clear? Now we have to calculate the electric flux passing through point P. Here small r is greater than capital R. Phi E equal closed integration of vector EdA vector. Now EdA cos theta. देखिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर पैरेलल, सो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, जीरो होगा. एंड cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे TA को इंटीग्रेट करेंगे कि आ जाएगा और एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर. तो A into 4 pi r square. This is equation number 1. But from Gauss theorem, phi E equal q upon epsilon naught. Charge is distributed over the surface. Charge जो है surface पे distribute है, इसलिए surface charge density sigma equal क्या आ जाएगा, charge per unit area. Then charge equals surface charge density into area. तो सिग्मा A और एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख लीजिए. A into 4 पाई r स्क्वायर इक्वल सिग्मा into 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r square upon small r square. That is the magnitude of electric field intensity at point P. अगर यही आपको at the surface पे निकालना हो, at the surface, तो at the surface पे कैपिटल R is equal to the small r. That's why हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r square upon r square, that is cancel out. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एट द सरफेस पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा. अगर आपको इंटरनल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पॉइंट P डैश एज्यूम कर लीजिए, एरिया वेक्टर डायरेक्शन बना लीजिए. क्लियर? तो अगर जस्ट इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल देखेंगे, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है द सरफेस पे है, इनसाइड में तो चार्ज नहीं है, चार्ज इज जीरो. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इंटरनल पॉइंट पे कितना आएगा, जीरो आएगा.
क्लियर? अब वेरिएशन देख लिया जाए। चार्ज देखिए डिस्ट्रीब्यूट है, center of the sphere is O and radius is R. Electric field intensity inversely proportional to the 1 upon R square. This is a variation of electric field intensity with R from the center. Now we have to discuss electric field intensity due to charge sphere and sphere is non-conducting. एकदम पिछले वाले की तरीके से इसमें भी काम करना है। यू हैव टू मेक द स्फीयर एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। पूरे वॉल्यूम पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया था। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज O, रेडियस इज R. We have to calculate the magnitude of electric field intensity at the following point. इसमें भी सबसे पहले at an external point पे calculate कर लिया जाए। at an external point. Clear? We have to make a spherical Gaussian surface. Its radius is smaller. Let there is a point P where we have to determine the magnitude of electric field intensity. Draw the area element. The direction of area vector and electric field intensity is radially outward. दोनों का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। तो एंगल इनके बीच में कितना बनेगा? 0. क्लियर? Now flux passing through that point, phi E equal closed integration of vector EdA. Clear? EdA cos थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA। DA को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा और एरिया कितना है? 4 पाई R स्क्वायर। एरिया कितना है? 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए चार्ज पूरे वॉल्यूम पे इस डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको पता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इक्वल हो जाएगा रो V। वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई R क्यूब। इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए। देन फाई E इक्वल रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल 4 पाई R क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल आउट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर।
क्लियर? ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at an external point. Clear? Now we have to calculate the electric field intensity at the surface. At the surface. Very easy. R is equal to small r. Then E equal rho upon 3 epsilon naught r cube upon r square, that is cancel out. अब हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, rho upon epsilon naught r upon 3. This is a magnitude of electric field intensity at the surface. Now we have to calculate electric field intensity at an internal point. अब हमें कहाँ निकालना है? इंटरनल पॉइंट पे निकालना है। एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए ऑफ रेडियस r, स्मॉल r, and its radius is capital. Clear? Now we have to calculate the electric field intensity at point P. यहाँ पे अगर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा? आउटवर्ड होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड। क्लियर? देखिए अब आपको अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एट पॉइंट P, सेम वही पिछला वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था, यही आएगा, फाई इक्वल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए चार्ज Q डैश is the part of charge Q which contained within the Gaussian surface of radius. तो गॉस थ्योरम से आपको क्या पता है? फाई E इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बता दिया Q डैश क्या है। चार्ज Q डैश is the part of charge Q which contained within the Gaussian surface of radius r. Clear? अब देखिए uniformly charge is distributed over on the entire volume of the sphere ना, तो वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी है वो सेम होगी। तो आप लिख सकते हैं रो इक्वल चार्ज Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? दैट इज इक्वल टू दी चार्ज Q डैश 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर? अगर हम इसकी वैल्यू लिख लीजिए तो Q डैश इक्वल, Q डैश की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? चार्ज Q R अपॉन कैपिटल R का क्यूब। ओके, तो एट द प्लेस ऑफ Q डैश हम क्या करेंगे? ये वैल्यू उठा करके रख दिया जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। क्लियर? देखिए इरेज कर दें। फ्रॉम गॉस थ्योरम आप लिख सकते हैं, अरे इरेज कर दिया मैंने, फाई इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये देखिए A इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश की वैल्यू अभी मैंने निकाला था, Q डैश इक्वल Q इंटू R अपॉन R का क्यूब। यहाँ पे रख करके कैलकुलेशन कर देंगे। Q इंटू R क्यूब अपॉन 3, सॉरी R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर क्यूब। क्लियर? अब कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना कितना वैल्यू आ रहा है, और आपको इस चार चीज देखिए और क्या मिल जाएगा। इसको इससे कट कर दिया जाए, ए इंटू 4 पाई क्यूब आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये इतना आ गया। और इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए आपने पहले लिखा था रो इंटू वी। क्लियर? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया रो इंटू 4/3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये 4 पाई, ये आपके ऊपर है आर। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। एनी डाउट? अरे यहाँ पे आर क्यूब तो छूटा हुआ है। क्लियर? अब जो कट रहा है उसे काट डालिए। देखिए ये वाला भी कट गया। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। This is the magnitude of electric field intensity inside the uniformly charged sphere. Clear? इसका भी वेरिएशन बना लिया जाए। Any doubt to anyone? देखिए यहाँ चार्ज में मैंने क्या किया है, चार्ज की जगह मैंने एकदम पहले वाले जो आपने एट एन एक्सटर्नल पॉइंट में जब निकाला था तो वहां पे आपने लिखा था चार्ज इक्वल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर? इसलिए आप वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, वही हमने रख दिया, कैलकुलेशन कर लिया, जो कट गया, जो रिमेनिंग है वो आंसर आ गया। इसका भी वेरिएशन बना लिया जाए। इसका भी वेरिएशन बहुत इजी है। देखिए, एनी डाउट एनीवन? ओके, any excess charge given to an isolated conductor reside on its outer surface। मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर ले लिया, क्लियर? तो चार्ज आप जो भी इसे देंगे वो कहां रिसाइड्स होगा, एट द सरफेस। इनसाइड में आप एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, जस्ट इनसाइड द आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। क्लियर? क्लियर? आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है ना। अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो फ्लक्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डीए। क्लियर? अब देखिए चार्ज इनसाइड इट दैट इज 0। फ्रॉम गॉस थ्योरम आपको क्या पता है,
फ्रॉम गॉस थ्योरम, phi e इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0, देन चार्ज इज 0। क्लियर। नाउ अगर हम कहें इनसाइड द कैविटी इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, इसके अंदर हम कैविटी कंसीडर कर रहे हैं, ये देखिए ये एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एट द सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनसाइड में आप एक कैविटी कंसीडर कीजिए, एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, आपको पता है इनसाइड द आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी ए गॉस थ्योरम का भी यूज कर लिए, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर इट have a positively charged point, nucleus of charge surrounded by a uniform charge density of negative charge up to a radius capital R. The atom as whole is neutral. For this model, what is the electric field intensity at a R distance from the nucleus? Clear? तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। आपको ये भी पता है न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। दिस इज नेगेटिवली चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, कंसीडर ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है और गिवन है इसका रेडियस कैपिटल R है। क्लियर। अब देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r मस्ट बी माइनस ZE। क्लियर। इफ रो इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, अगर रो आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो तब देख लीजिए ZE प्लस 4/3 पाई आर क्यूब रो दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। ना हम यहां से रो की वैल्यू निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो इक्वल माइनस ZE। क्लियर। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए 4 पाई आर क्यूब रो इक्वल माइनस 3 ZE। क्लियर। रो इक्वल माइनस 3 ZE अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यह आपका निकल गया डेंसिटी। क्लियर। ना अगर आपसे हम कहें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का वही पुराना वाला फॉर्मूला A × 4 पाई r², जब सॉल्व किए थे तो इतना आया था। क्लियर। ओके, इतना आ गया। नाउ चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, कितना गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं।
चार्ज enclosed by the Gaussian surface, charge equal positive nucleus charge, positive nucleus charge प्लस आपका जो है नेगेटिव चार्ज इन द स्फीयर, that is ZE, that is नेगेटिव चार्ज इन द स्फीयर। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब रो। रो की वैल्यू जस्ट आपको अभी आपने यहाँ पे लिखा है, रो की वैल्यू थोड़ा यहाँ प्लेस कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। रो की वैल्यू आपकी है -3ZE/4 पाई आर क्यूब। क्लियर? यहां से देखिए जेडी कॉमन हो जाएगा, तो ZE इक्वल सॉरी चार्ज Q इक्वल ZE 1 माइनस जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब आपका देखिए क्या बच जाएगा, R³ अपॉन कैपिटल R³। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। क्लियर? नाउ अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो फाई E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जस्ट वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका हो गया ZE इंटू 1 माइनस R³ अपॉन R³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आपका था फाई E इक्वल E इंटू 4 पाई R³। ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब हो जाएगा E इंटू 4 पाई R³ इक्वल ZE इंटू 1 माइनस R³ अपॉन R³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जो इधर ट्रांसफर हो रहा है उसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो E इक्वल ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना बच गया, एंड ये आपका आ गया 1 माइनस R³ अपॉन R³। अभी यहाँ पे हम R रहने दे रहे हैं, R³ को। क्लियर? आफ्टर टाइम हम इसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। आउटर सरफेस था ये स्मॉल r² था बच्चों, स्मॉल r² था। एरिया 4 पाई r², ये है r²। क्लियर? तो हम चाहे तो इसको भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक के भी ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। r², चलिए इसको भी इधर बढ़ा देते हैं। ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा R³ माइनस स्मॉल r³ अपॉन R³। क्लियर? इसको थोड़ा इसके पास भेज दीजिए। ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ माइनस स्मॉल r³ अपॉन R² R³।
क्लियर, एक बार इतना इसके नीचे, एक बार इतना इसके नीचे। तो देखिए आपका आ गया ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर R क्यूब माइनस R क्यूब अपॉन R क्यूब R स्क्वायर। क्लियर, ये कट गया एंड R क्यूब से एक ये R स्क्वायर कट गया। तो आपका बचा ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस R अपॉन R क्यूब। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। अच्छा केस 1 देखिए, अगर मान लीजिए एटम न्यूट्रल है तो एज एन न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है तो भाई तब तो कोई बात ही नहीं है, आपका चार्ज मिलेगा नहीं। इट मीन E into 4 pi R square equals 0 and electric field intensity is 0। क्लियर। और अगर हम ये कहें कि ये जो R है इस R के इक्वल है तब भी निकाला जा सकता है। R इक्वल टू R वैल्यूज रख के कैलकुलेशन कर लेंगे, इजीली आ जाएगा। क्लियर। इसमें भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 0। एनी डाउट टू एनीवन? थैंक यू।